तो जो अब तक की बात हमने की है, पहले तो हम ये समझ चुके हैं, मैं थोड़ा गुजराती में रख रही हूँ आज, ठीक है। તો આપણે એ જોયું છે કે આ અવસ્થાઓ 4 છે જે ઓલરેડી આ અસ્તિત્વ એટલે જે છે ને આ સૃષ્ટિ જે દેખાય છે આખું બ્રહ્માંડમાં, તો એમાં 4 અવસ્થાઓ ઓલરેડી છે જે પ્રગટિત થઈ છે. પહેલી છે પદાર્થ અવસ્થા, બીજી છે પ્રાણ અવસ્થા, ત્રીજી છે જીવ અવસ્થા અને ચોથી છે જ્ઞાન અવસ્થા. તો 3 અવસ્થા આપણે જોઈ કે જે પ્રગટિત ઓલરેડી થઈ છે. તો પદાર્થ એટલે ખબર છે શું છે? એ જે માટી છે, પછી ધાતુઓ છે, જે આ ધરતી પર આપણે અંદર જે મિનરલ્સ કહીએ છીએ, એ બધું જે છે એ બધું પદાર્થમાં આવે. પછી એનાથી જે આપણે જોયું કે અણુઓ જે હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન બનીને જે પાણી બન્યું, તો એના નમાસથી પછી આગળની અવસ્થા પ્રગટિત થઈ જે છે પ્રાણ અવસ્થા. તો એ પ્રાણ અવસ્થા જે આપણે ઔષધિઓ, વનસ્પતિઓ, ઝાડ, એ બધા ઝાડવાને એ બધું જોઈએ છે એ છે. હવે એ આપણે જોયું કે એકબીજાને પૂરક છે, એ લોકો એકબીજાની સમૃદ્ધિ માટે એ લોકો પૂરક છે. જેવી રીતના ઝાડવા છે તો એ જ્યારે સુકાઈ જાય તો પછી એ જે માટી છે એને ઉર્વરિત કરે, એને હજી ઓર સમૃદ્ધ કરે છે. અને ઓલરેડી એની માટે પહેલી જે અવસ્થા છે, જે પદાર્થ અવસ્થા છે, એ ઓલરેડી છે એની માટે. તો એની ઉપયોગી માટે એ પદાર્થ અવસ્થા છે કે એનામાંથી જે પણ ખનિજ ને બધું જોઈતું હોય, જે મિનરલ્સ, જે તાપ જોઈતો હોય સૂરજમાંથી, એ બધું એ મળે છે, એ અસ્તિત્વમાં ઓલરેડી છે. તો એવી રીતના જીવ અવસ્થા થઈ. પછી જ્ઞાન અવસ્થા. તો જ્યારે જ્ઞાન અવસ્થા પ્રગટિત થઈ એની માટે ઓલરેડી 3 અવસ્થા ઓલરેડી આવી ગઈ હતી, બરાબર. તો એકબીજામાં એ પૂરકતા અને જે આપણે ઉપયોગિતા કહીએ છીએ એ જ છે સમાધાન એટલે જે છે, અને એ સમાધાન રૂપે એટલે સોલ્યુશન બેઝડ જ છે. એમાં કોઈ સમસ્યા કે એમાં કંઈ પરિવર્તન નથી, એ નિત્ય રહેશે, એ હંમેશા નિત્ય રહેશે, એટલે સમાધાન છે. તો હવે જે જ્ઞાન પક્ષ, તો આપણે આ 3 અવસ્થાઓ જોઈએ, એકબીજામાં પૂરક છે, ઉપયોગી છે અને સમૃદ્ધ છે. તો હવે જ્ઞાન પક્ષમાં જ્યારે આવે તો આપણે જોયું કે જ્ઞાન પક્ષમાં 2 ચીજો આવી. એક છે જે માનવ શરીર છે, જેને કહીએ છીએ જળ પક્ષ, અને બીજું છે ચૈતન્ય પક્ષ. તો જળ પક્ષ ઉપર હજી સંશોધન થતું ગયું, જે એકચ્યુઅલી ઓલરેડી છે ઉપલબ્ધ આપણને. આ પૂરી સૃષ્ટિએ આપણને ઉપલબ્ધ કરી આપ્યું છે. તે પ્રાણની કોશિકાઓથી જ આ જીવ અને માનવનું શરીર બન્યું છે. તે ઓલરેડી એમાં જે આપણે જોયું કે શા માટે આપણે આ જીવન વિદ્યાની જરૂર છે. તો જીવન એટલે આપણે જે ચૈતન્ય પક્ષ છે એને જીવન કહેવામાં આવ્યું. તો જળ પક્ષ ઉપર તો બધું સાયન્સ, બાયોલોજી, કેમેસ્ટ્રી, જે બધું આવી ગયું છે, એનું બધું સંશોધન થઈ ગયું. પર હજી માનવ આટલા વર્ષો પછી હજી એ કાર્ય કરે છે. તો ક્યાં આપણે ખૂટી પડ્યા, એ સમાધાન ક્યાં નહીં મળ્યું? તો ચૈતન્ય પક્ષ આપણને પકડવામાં નહીં આવ્યું કે હું શું છું. તો એ જળ પક્ષ તો સિર્ફ એક સાધન છે આપણા માટે. એ ચૈતન્ય પક્ષને સમૃદ્ધ કરવા માટે એ સાધન છે. તો એ સાધન જે આપણે 5 ઇન્દ્રિયો છે, જે 5 ઇન્દ્રિયોને જે આપણે સાંભળીએ છીએ, તો એ કાન સાંભળે છે એવું નથી, એ કંઈક છે જે આના દ્વારા સંભળાય છે આપણને. એક એક્ઝામ્પલ એવી રીતના. તો એ શું છે? તો એ ચૈતન્ય પક્ષ છે. તો એ ચૈતન્ય પક્ષને તો હવે આગળ ખોલશે આજે, પર એમાં એક જે છે, એક આપણી પૂંજી શું છે? તો આપણી પાસે કલ્પનાશીલતા છે અને કર્મ સ્વતંત્રતા. એ માનવ પાસે આ 2 ચીજો એની પૂંજી છે. તો એ કલ્પનાશીલતા એટલે એને કહેવામાં આવ્યું આશા, વિચાર, ઈચ્છા.
તો એને કેવી રીતના હવે આગળ આપણે આ સમાધાનના માર્ગમાં આ સમાધાન છે એ કેવી રીતના પકડશું એના વિશે આજે ખોલશું आई थिंक, है ना। और जहाँ पर ये मुझे यहाँ पर से इसको हटाना है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये क्या है? जीव चेतना में रहते हुए ये काम हो नहीं सकता। इसलिए जीव चेतना से मानव चेतना में परिमार्जन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो हमारे विषय हैं उनका हमें अध्ययन करना, उसको समझना और क्या करना है, समझेंगे जिएंगे। छोटी सी बात, ठीक। थोड़ा सा यथास्थिति का और विश्लेषण कराया जाए। आज जगत की यथास्थिति ये है, जीव चेतना में मानव है। जीव चेतना से मानव चेतना में परिमार्जन के लिए हमारे पास जीवन विद्या योजना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, ताकि हम बालक तक, जो जिज्ञासु बालक है उस तक समाधान को पहुंचा पाएँ और समाधान की परंपरा को सुनिश्चित कर पाएँ। समाधान का एक और अर्थ है निश्चित आचरण। निश्चित मतलब जो बदलता न हो, समाधान बराबर निश्चित आचरण। तो पदार्थ परिणामानुषंगीय विधि से निश्चित आचरण को प्रकट करता है। परिणामानुषंगीय विधि से उपयोगी पूरक है, यही समाधान है। यही निश्चित आचरण आगे के लिए अवस्था के लिए पूरक हो जाता है। बीजानुषंगीय विधि से, बीज वृक्ष परंपरा विधि से बीज अपने निश्चित आचरण को प्रकट करता है और आगे के लिए पूरक होता है। तो निश्चित आचरण बराबर समाधान। जीवावस्था जो है वंशानुषंगीय विधि से अपने निश्चित आचरण को प्रकट करती है और ये भी एक पूरक स्वरूप दिखाई पड़ती है। मानव का आचरण निश्चित नहीं हो पाया है, और मैंने लिखा था मानव कैसे निश्चित आचरण को प्रकट करता है। मानव समझ पूर्वक नियंत्रित है, अपने आप ही वो सही हो जाता है। यदि समझ जो है पूरी और सही है, मतलब यथार्थ है, पूरी और सही यथार्थ समझ, तो समझ पूर्वक नियंत्रित, इसी का मतलब है निश्चित आचरण। इसी का मतलब है समाधान स्वरूप। और समाधान स्वरूप होने से ही क्या होता है, तीनों अवस्थाओं का या चारों अवस्थाओं का पोषण संरक्षण करता है, जिसके फलस्वरूप समृद्धि को प्रमाणित कर देता है। ऐसा डिज़ाइन है अस्तित्व का। मतलब हम सब ये किए बिना तृप्त नहीं होंगे, हमको ये होना ही है। तो जीव चेतना में मानव इस विधि से चल रहा है ना, संवेदना प्रधान विषयों में जीने का उसने कार्यक्रम बनाया। अब थोड़ा ये भी देखें कि ऐसा कैसे हो गया, आदमी जीव चेतना में कैसे चला गया, है ना। तो आदमी जो है प्रगटन के क्रम में जीव से ज्ञानावस्था प्रकट हुई। जंगलों में, गुफाओं में, है ना, कहीं मानव प्रकट हुआ होगा। जब प्रकट हुआ होगा उसके पास जो वातावरण है वो किसका ही मिला होगा उसको, जीवों का। तो उसने कहीं ना कहीं जीवों से ही जीने की प्रेरणा को ग्रहण कर लिया, लेकिन उससे वो तृप्त नहीं हुआ, इसलिए शोध जारी है। शुरुआत वहाँ से करी, लेकिन शोध जारी है। तो आहार निद्रा भय प्रजनन को वहाँ देखा, वैसा किया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को देखा तो वैसा किया, लेकिन उससे आगे अपने आप बढ़ गया अस्तित्व सहज विधि से। कैसे जानते हैं, जब जीव है तो जीवों में हम क्या देखते हैं, केवल उनमें नाद दिखाई पड़ता है। जैसे गाय रंभाती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौं भौं करता है ना। लेकिन मानव जो है ना, भाषा बोलता है, गोरा हो, काला हो, ऑरेंज हो, कोई भी
स्किन का व्यक्ति हो, कहीं पर भी हुआ, भाषा उसमें अस्तित्व सहज विधि से प्रकट हुई, क्योंकि मानव एक अलग इकाई है पूरी तरीके से। तो ज्ञानावस्था में बहुत सारी चीज़ों के प्रकटन होते रहे, उसका शोध निरंतर चलता रहा। भाषा को भी मानव ने कहा ऐसे नहीं, भाषा को विधिवत व्याकरण सहित बोलना, व्याकरण के बारे में भी आदमी ने सोचा, सही तरीके से कैसे बोला जाए, अपनी बात को कैसे रखा जाए, इसको भी उसने सोचा, बहुत कुछ सोचा आदमी ने। आदमी का शोध, आदमी जितना पुराना है, जितना पुराना आदमी इस धरती पर है उतना ही पुराना ये शोध है। ठीक है, तो जो ज्ञानावस्था की इकाई है उसने कहीं ना कहीं यहाँ से प्रेरणा को प्राप्त किया और वो कहीं ना कहीं आगे आगे कन्वर्ट होते रहा। तो छोटी सी एक बात ऐसी हो गई, देखो कि जो ज्ञानावस्था की इकाई मानव है, ये शरीर और चैतन्य, इसका संयुक्त स्वरूप है। और ये ज्ञानावस्था की इकाई ने यदि स्वयं को शरीर मान लिया, क्या मान लिया? स्वयं को शरीर मान लिया, स्वयं को शरीर माना। तो यदि स्वयं को शरीर मान लिया तो क्या हुआ? तो उसने इस शरीर के विषय, भाई शरीर में कुल कार्यक्रम कितना चल रहा है, या तो विषय चल रहे हैं या तो संवेदनाएं चल रही हैं, तो शरीर के ही विषय और संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास करने लग गया। यहाँ पर स्लाइड है, आपको दिखाती हूँ, बड़ी फनी और इंटरेस्टिंग स्लाइड है, उसको देखते हैं। आप शुरू से अगर लगाएं तो जब मानव ने स्वयं को शरीर मान लिया और ऐसा माना कि ये जो भौतिक पदार्थ है इसमें से ही चेतना निःसृत हुई, इसको बोलते हैं भौतिकवाद। इसके बारे में आप डिटेल से विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, और यदि और अच्छे से जानना हो तो हमारे अध्ययन सत्रों में। हमारे जो शरीर का रचना ऐसा है कि इसमें से एक चैतन्य पक्ष, ये अपने आप चैतन्य हो गया है, आत्मा जैसी कोई वास्तविकता या कोई चैतन्य जैसी कोई वस्तु नहीं है, इसको बोलते हैं भौतिकवाद। योलो, यू ओनली लिव वंस, एक ही बार शरीर मिलता है। इस तरीके की जो मान्यताएं हैं वो मूलतः भौतिकवादी मान्यताएं हैं। यहाँ पर हाँ, तो देखो क्या हुआ, असल में चैतन्य पक्ष में समाधान चाहिए था। शरीर तो समाधान स्वरूप था ही, शरीर समाधान स्वरूप था, चैतन्य में समाधान की अपेक्षा थी। अब हम कहीं का कहीं कुछ का कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चैतन्य में निरंतर सुख की तलाश है, लेकिन अपने आप को माना ही नहीं कि हम चैतन्य हैं, या जाना ही नहीं कि हम चैतन्य हैं। हम क्या हैं इसका अध्ययन नहीं हुआ परंपरा में। तो अब हमने क्या किया, बस ऐसे ही कुछ हो गया, जो आहार निद्रा भय प्रजनन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन परमुटेशंस चलते रहे और उसमें हम सुख को तलाश करने चल पड़े। तो जो जहाँ पर है नहीं उसे वहाँ से पाने का प्रयास करना ही भ्रम है। मेरी सुई यहाँ पर खोए और मैं ढूंढूं जाके बाहर, वो मिलेगी नहीं। वो एक ऐसा विशेष साइकिल है, कभी ख़त्म नहीं होगा। उसमें वो ढूंढने वाले का जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन सुई उसको नहीं मिलेगी। ये ऐसी बात है। तो इस इमेज को आप देख पा रहे हैं ना, तो संवेदनाओं और विषयों में सुख है नहीं, ये विषय और संवेदनाओं का एक प्रयोजन है। आहार का प्रयोजन है शरीर का पोषण। संवेदनाएं जो आप सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं, उसका एक प्रयोजन है कि वो आपको रुचिकर लगे, ताकि आपके शरीर में वो आसानी से पचे। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, रुचे सो पचे। यदि आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, वो आपको शरीर में पचेगा भी नहीं। तो इसका एक प्रयोजन था, वो प्रयोजन अपने को पकड़ में नहीं आया। पकड़ में नहीं आया मतलब हमारी शिक्षा में नहीं आया, या शिक्षा में इसके उल्टा आ गया। कैसे आ गया? अगर आप ये खाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसके एडवर्टीजमेंट्स चलते रहते हैं भाई 24 घंटे, इसकी चर्चा चलती रहती है।
हमारे 4 मित्र बैठते हैं तो यही चर्चा चल रही कि हम वहाँ गए थे, वहाँ ये करने से मज़ा आया, वो करने से मज़ा आया। ये हमारे वातावरण में लगातार उपलब्ध है। तो हमको एक तो सही शिक्षा मिली नहीं, दूसरे उल्टी शिक्षा मिल गई। डबल साइड गड़बड़ हो गया ये। तो जो जहाँ पर है नहीं उसे वहाँ से पाने का प्रयास करना ही भ्रम है। शरीर में, इंद्रियों में सुख है नहीं, उसे हम शरीर से या विषय और संवेदनाओं से पाने का प्रयास करें, एक ऐसा भ्रम है जिसमें पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और मृत्यु बहुत पीड़ादायी होती है। तो ऐसा लगता है कि बस इस संसार से कैसे ही छुटकारा हो। संसार समझ में नहीं आया तो अंत में यही होता है कि बस कैसे इस चक्र से हम निकले। तो आदमी क्या सोचने लगता है कि शायद ये कुचक्र है। ढूंढना कहाँ था? यहाँ जहाँ सुई खोई थी, और ढूंढ कहाँ रहा है? वहाँ, क्योंकि उसको लग रहा है वहाँ रोशनी है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बताया कि वहाँ रोशनी है तो चलो वहाँ पर ढूंढेंगे। पूरा जीवन निकल गया, है ना। तो जैसे इंद्रियों से निरंतर सुख की तलाश। भ्रम का क्या मतलब है? भ्रम का प्रमाण क्या है? भ्रम का मतलब है दुख, ये हम एक्सपीरियंस करते हैं, पीड़ा। भ्रम यदि है तो उसका प्रमाण, मैंने कल आप लोगों को कहा था, एक जीपीएस हमारे भीतर है, एक सिस्टम है जो हमको बता रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ तो गड़बड़ है किस स्वरूप में आपको पता चलता है? एक तो आपके दुख के स्वरूप में, आपके भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार में निराशा झलकने लगती है। निराशा इस बात का प्रमाण है कि हम भ्रम में हैं। दुख है जिसको हम व्यक्त करते रहते हैं। आप देखिए लगातार दुख की ही बातचीत चल रही है, भ्रम है। पीड़ा है, अंदर से कोई पीड़ा, बार बार कोई बात कचोटती है, भ्रम है। प्रकृति में यदि इसी को देखेंगे तो किस रूप में दिखाई पड़ता है कि अस्तित्व को हमने नहीं समझा। जैसे मैंने कल आपको कोयला पेट्रोलियम का उदाहरण दिया, कोयला पेट्रोलियम का प्रयोजन क्या है ये समझ में नहीं आया तो उसको गर्भ से निकाल के मालगाड़ी से यहाँ से वहाँ पहुँचा के और जला करके हमने वातावरण प्रदूषित कर दिया। इसे हम कह रहे हैं भ्रम। भ्रम मतलब कुछ का कुछ मान लेना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना, उसको बोल रहे हैं यथार्थ, यथार्थ समझ। और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, इसको बोल रहे हैं भ्रम। हमने कुछ मान लिया है। प्रदूषण, फिर बोला नियति विरोधी कार्यक्रम। नियति विरोधी, नियति मतलब एक जो अनुक्रम है, अस्तित्व सहज जो अनुक्रम है, अस्तित्व के अनुक्रम में किसी एक समय में बड़े लंबे लंबे जो पेड़ थे जिन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड का पाचन किया स्वयं में, अस्तित्व सहज विधि से वो धरती के गर्भ में चले गए और इसी कारण से किलोमीटर के किलोमीटर हमको कोयले की परतें मिलती हैं। तो वो कोयले के रूप में, पेट्रोलियम तेल के रूप में, क्रूड ऑयल के रूप में हमको मिलता है। उसका प्रयोजन है धरती के ताप को संतुलन करना। तो अस्तित्व सहज विधि से वो धरती के गर्भ में गए थे और हमने क्या किया, उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया। वो नीचे गए थे, हम उसको उठा के ऊपर ले आए। इसको कह रहे हैं नियति विरोधी कार्यक्रम। अस्तित्व की जो दिशा है उसके उल्टे हम चलने लगे। अस्तित्व ने कार्बन मोनोऑक्साइड को पचाकर धरती के गर्भ में डाला, हमने उसको वापस उठा के जला दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड को वापस हवा में फैला दिया। यह है नियति विरोधी कार्यक्रम। इसका नाम है अपराध। समस्या कहाँ है? कहीं चैतन्य पक्ष में कोई सॉर्टेडनेस नहीं है, कोई समाधान उपलब्ध नहीं, कोई यथार्थ ज्ञान की कमी है। पूरी कैसे होगी? जिज्ञासा प्लस समाधान। आप में जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, पूछेंगे, समाधान उपलब्ध है। आगे देखें क्या बनाएं। और नीचे जाइए। और
ये सब आपको एक एक करके भी आगे समझाएंगे। और ये पुराना एक पीपीटी है, मैंने ऑनलाइन एक बारी सत्र लिया था उसका, मुझे लगा कुछ स्लाइड्स आपको दिखाती हूँ। और जाइए नीचे, हाँ और नीचे, बस। तो यहाँ पर देखें, जब हमने अपने आप को शरीर मान लिया और शरीर मूलक विधि से, शरीर मूलक मतलब शरीर को केंद्र में रख के सोचने का तरीका, तो यदि शरीर को केंद्र में रखा तो सोच कुल मिला के इतना ही पाओगे कि आहार, निद्रा, भय, प्रजनन कैसे हो, कैसे और अधिक सुविधाजनक तरीके से हो, कैसे और अधिक आनंददायक तरीके से हो, यही सब विचार चलते रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या पाते हैं, ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में विविधता है। चाहे आयुर्वेद की पद्धति से देखें, कफ, वात, पित्त और इसके कुल 7 प्रकार के एक रूप को देखा, उसमें भी छोटा बड़ा हर एक है ना, इतना वैरायटी है कि बात मत पूछिए। और हर वैरायटी मतलब हर एक वस्तु शरीर रूप में मैं आपसे भिन्न हूँ। हर एक व्यक्ति क्या है, ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक और यूनिक दिखाई पड़ता है। किसी को वनीला आइसक्रीम अच्छी लगती है और किसी को बिल्कुल उससे नफरत दिखाई पड़ेगी, ऐसा है। किसी को वही जैज़ म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है और किसी को बिल्कुल नफरत होती है ऐसे म्यूज़िक से। किसी को कच्छी म्यूज़िक अच्छा लगेगा और किसी को बहुत इरिटेटिंग लगेगा। ये वैरायटी है। तो शरीर मूलक जब भी हम सोचेंगे उसमें वैरायटी है और अस्तित्व सहज विधि से है। बच्चा 1 रोटी खा के तृप्त होगा, बड़ा कोई हो सकता है मजदूर काम करने वाला व्यक्ति हो, श्रमिक हो सकता है 8 रोटी खाए। तृप्ति जो है वो सार्वभौमिक है। आहार से यदि पोषण होता है तो तृप्ति होना ये एक सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन आहार की क्वांटिटी जो है वो शरीर के आधार पर निर्धारित होती है और शरीर के आधार पर जब भी कोई विचार हम करेंगे उसमें विविधता आएगी। और अगर मान लीजिए हमें इस तरीके का एक भ्रम हो गया कि अब हम इसी विधि से इसको अधिक से अधिक करके हम सुखी हो जाएं, तो जहाँ पर जो है नहीं उससे हमने सुख पाने का जब प्रयास किया तो पाया इतना वैरायटी हम क्रिएट करते जा रहे हैं। और इस वैरायटी को क्रिएट करने में इस धरती का हमने खूब शोषण किया, क्योंकि हमको क्या लगा, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक क्रियाकलापों से हम सुखी होंगे। तो भौतिक वस्तुओं को बनाने के लिए भौतिकता की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इस धरती के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो खूब सारा माइनिंग हम करेंगे, जंगल काटेंगे, पेड़ पौधे, जीव जानवरों को नष्ट करेंगे। तो हमने नष्ट किया, नष्ट करके खूब सारे सुविधा साधन सब बना लिए। बनाने के बाद अभी पूछो जिनके पास, जो इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्या वो खुश हैं? जिस निरंतर सुख की तलाश में जो मान के वो चले थे, वो खुश हैं? उनकी स्थिति को देखिए, उनके संबंधों की स्थिति को देखिए, सोच के देखिए, है ना। अपने हिंदुस्तान में भी एक जो परिवार है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, भाई भाई वहाँ पर भी अलग हो ही गए। कितना पैसा आ जाने के बाद हमें लगेगा कि भाई अब इतना सुविधा संग्रह हो गया है, अब हम तृप्त हो गए, अब खुशी खुशी जिएंगे। तो पूरे संसार में यदि नज़र दौड़ाएं और हम अपने प्रति सतर्क रहें, अपने से झूठ ना बोलें, अपने एक ऑथेंटिसिटी को बना करके यदि सोचें तो पाते हैं कि सुविधा कितना भी पा लिया, आदमी निरंतर सुखी नहीं हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे सोचने में? ज़रा रुको, ठहरो, सोचो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुविधाएं आवश्यक नहीं है, अपने को भी एक छत तो चाहिए, ये माइक की भी आवश्यकता है, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है और कितनी मात्रा में चाहिए, कितनी मात्रा में, है ना। आहार का एक प्रयोजन है, आहार का प्रयोजन है शरीर को पोषण देना। उसकी एक निश्चित मात्रा है, उतना खाने से पोषण होगा और आपने उसका डबल खा लिया, शोषण ही होगा, आपका शरीर उसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं उसको यूज़ करेगा। इसी तरीके से कपड़े का भी एक प्रयोजन है, शरीर का संरक्षण करना।
गर्मी से, ठंडी से, वर्षा से बचाना, और जो शील लज्जा जो मानव में है उसका संरक्षण करना। ये कपड़े का प्रयोजन है। अब इससे अधिक यदि मैं कपड़े को मान लूँ, और कपड़े को मानने के बाद है ना, उस कपड़े में खोद खोद के ज़मीन को, पूरी दुनिया भर की ज़मीन खोद के जितने बड़े बड़े हीरे हैं उसको हम, वो पत्थरों को अपने कपड़ों पे लगा लें, और उसके बाद हम कहें देखो, तो मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है आदमी का ऐसा हो जाना। क्या सोच लिया होगा उसने कि किलोमीटर के किलोमीटर उसने ज़मीन को खोद के वहाँ से चमकने वाले पत्थर, वो चमकते भी नहीं हैं, उनको चमकाया बैठ के पत्थरों को, और पत्थरों को चमकाने के बाद कहीं गले में टांग लिया, कहीं कान में टांग लिया, कहीं कपड़े में जड़ लिया, कहीं जड़ लिया, और जड़ करके अपने आप को समझ रहा है कि मैं विकास कर रहा हूँ, आई एम अचीविंग सम काइंड ऑफ बेटरमेंट इन माई लाइफ। तृप्ति हुई? तृप्ति नहीं हुई। इससे मेरा आशय किसी की आलोचना करने का नहीं है। पुनः ये बात मैं हमेशा जब बोल रही हूँ तो ये जानती हूँ कि हमको जिस दिन सही समझ में आ जाएगा हम सही चलेंगे, क्योंकि आदमी समझ से नियंत्रित है। तो देखिए, शब्द को हमने इतना वैरायटी, भाषा, संगीत, ये वो पता नहीं क्या क्या है ना, लेकिन जब उससे भी कम्युनिकेट करने गए तो पता चला हमने संगीत बनाया। आज का संगीत, मैं जो अच्छा काम हुआ है उसको अप्रिशिएट करती हूँ, उसको आगे बढ़ाने के पक्ष में हूँ, लेकिन अभी आज जो प्रचलित संगीत को यदि हम देखते हैं तो भोग और विलास दोनों को बढ़ाने के अर्थ में पूरा भाषाकरण ऐसा है। आप शब्द को सुनेंगे, अगर किसी गीत के शब्दों को सुने तो आपको लगेगा कि वो केवल और केवल उत्तेजना को बढ़ाने के लिए, उत्तेजना को बढ़ाने का अर्थ मतलब प्रजनन क्रिया को बढ़ाने के लिए लिखे गए शब्द हैं। विचार करके देखिए, पूरा संगीत वहाँ पर चला गया। इसी तरीके से आहार में पोषण तो पता नहीं कहाँ चला गया, केवल स्वाद ही स्वाद रह गया। आहार का जो मौलिकता है वो क्या है? शरीर का पोषण करना। पोषण कहीं चला गया, और अब हम ऐसा, जिसको जंक फूड कहते हैं, जंक मतलब कबाड़, कचरा, कचरा मतलब आदमी कचरा खाने लग गया। हम कहाँ पहुँच गए? मतलब हमको आहार भी समझ में नहीं आया। और ऐसा, इस चीज़ को हम बोलते हैं, आपको ये तो बहुत अद्भुत है। मैं पिछले साल यहीं पर ही इसी समय बी वोक एग्रो के बच्चों का लेक्चर ले रही थी, और उन्होंने एक शब्द बताया, वैल्यू एडिशन। तो जैसे आलू है, आलू में एक पोषण होता है, आलू खाते हैं, शरीर का पोषण होता है, ये बात सबको पता है। अब आलू जो है उसको हमने क्या किया, मान लीजिए उसको छीला, काटा, चिप्स बनाया, और उसको पाम ऑयल में फ्राई कर दिया, और उसको प्लास्टिक की एक थैली में बंद कर दिया। उसमें ऐसे सब तत्व डाले, नमक, मिर्ची, मसाला डाला जो शरीर को हार्म करता है, और उसको बाज़ार में बेच दिया, और लोगों को ये भी कहा कि खाओ, इसको खाने से बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, तो ये वैल्यू का एडिशन हुआ या वैल्यू का रिडक्शन हुआ? आपने इस वस्तु के मूल्य को बढ़ाया या घटाया? बढ़ाया कि घटाया? घटाया। और इसको हमने नाम दिया है इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन। वी आर एडिंग द वैल्यू। आर वी एडिंग द वैल्यू? और इसको हम बोल रहे हैं व्यवसाय है हमारा। इस तरीके का एक अर्थतंत्र हमने खड़ा किया, फिर प्रचार तंत्र है उसमें, है ना। चलिए, उस विषय पे बहुत नहीं जाते हैं, तो उसी जगह जाइए। हाँ, तो देखिए, जो हमारी संवेदनाएं थीं, चूँकि संवेदना प्रधान मानव है, संवेदना प्रधान किसी पर्पस से है भाई, ताकि आपका स्वास्थ्य सुनिश्चित हो। तो उसने क्या किया, इतना वैरायटी उत्पन्न किया, और उसके बाद भी कहीं वो पहुंचा नहीं। फिर स्पर्श से, है ना, कोमल कठोर, कौन सी चीज़ ज़्यादा कंफर्टिंग लगती है?
कोमल कठोर को भी जांचता रहा स्पर्श के लिए, है ना, टच कैसा आ रहा है ना, किसी चीज़ का, इसमें शोध करते रहा। इसकी आवश्यकता नहीं है। अस्तित्व सहज विधि से कॉटन उपलब्ध है, सिल्क उपलब्ध है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो मानव के लिए अनुकूल हैं, लेकिन यही सब चीज़ों में हम बने रहे तो बात बनेगी नहीं। अगला, रूप आदि में विविधता, विविधताओं को, रूप है ना, कैसा रूप अच्छा लगेगा, है ना, पता नहीं आप जानते हैं कलर थियरी करके एक चीज़ है, ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं, है ना, मैचिंग एक चीज़ है, कपड़े लत्तों की मैचिंग, है ना, कैसा हेयर स्टाइल एक यहाँ पे बनाते हैं, ऐसा, मतलब कितना रूप में विविधता करने से हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा न जाने कितना प्रयास आदमी ने किया, कहीं पहुँचा नहीं। और ये जो फैशन इंडस्ट्री है ना, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री। पूरी मानव जाति को, एक मैंने आज से 2017 में एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में ऐसा लिखा था 2017 में पूरे दुनिया भर में इतना कपड़ा उपलब्ध है, सिला हुआ नहीं, केवल जो थान होते हैं कपड़े के, ऐसा मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल जिसको बोलते हैं, इतना क्लॉथ मटेरियल उपलब्ध है कि अगले 25 साल तक हर एक व्यक्ति हर रोज़ एक नया कपड़ा पहन सकता है। इतना कपड़ा ऑलरेडी उपलब्ध है। 2017 में मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा था। फास्ट मूविंग फैशन इंडस्ट्री जो है ना, मतलब, और वैराइटीज़ हैं, रोज़ चेंज होने वाली वैराइटीज़, इस तरीके से तो आकर्षण दे रहे हैं। आप देखिए जो बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन आप सब जानते हैं, फैशन एवरीडे, हर रोज़ फैशन बदल रहा है भाई। कपड़े का कोई प्रयोजन था तो हमने उससे सुखी होने का प्रयास किया, पूरे वातावरण पूरे पोल्यूट करके रख दिया भाई, धरती को पोल्यूट किया हमने इससे। नेक्स्ट, रस, 6 प्रकार के रस। अब ये सारे रस जो हैं, जो लोग आयुर्वेद भी थोड़ा समझते हैं, पोषण के अर्थ में है। अब ये पोषण का अर्थ तो किसी को पता नहीं है, वो बहुत लोगों ने अभी शिक्षा में भी वो कंटेंट नहीं है, वैसे भी नहीं पता चलता है। जो अच्छा लग रहा है केवल उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर करके शरीर की ऐसी की तैसी कर ली हमने। अभी क्या करें, ठीक है, तो इससे भी सुख पाने का जो प्रयास है ना, जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको कंज्यूम किए जा रहे हैं, है ना। थोड़ा ऐसी एक्सेसिव ईटिंग कई बार हम कर लेते हैं, लेकिन एक शब्द पता नहीं आपको ध्यान में है कि नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग वो चीज़ होती है जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है ना, या निराश हो जाता है, या अवसादग्रस्त हो जाता है, जब डिप्रेशन में जाता है, जब उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता है, जब कोई संबंध में टूटन आती है, कहीं संबंध में पीड़ा होती है, तो ये एक डिसऑर्डर आदमी में देखा जाता है जिसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। क्योंकि उसको संबंध में तृप्ति नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं भोजन से, या फिर कहीं घूमने जाएं, है ना, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, या फिर शॉपिंग कराएं, इस तरीके की विधियों से सोचता है कि अब थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। मूड खराब हो जाता है ना, तो मूड अच्छा करने के लिए हम प्रयास करना शुरू करते हैं। इसी को बोल रहे हैं, जो जहाँ पर है नहीं उसको वहाँ से पाने का प्रयास करना ही भ्रम है। भाई इधर प्रॉब्लम था नहीं तुम्हारे खाने में, प्रॉब्लम तुम्हारे संबंध में था। संबंधों में जीना कैसे वो अपने को पता नहीं है, और अपन लगे पड़े सुई बाहर ढूंढ रहे हैं, कभी वो ज़िंदगी निकल जाएगी, मिलेगी नहीं, और बीमार हो के मर जाओगे, सो अलग, जल्दी मर जाओगे। तो अच्छा है कि संबंधों को समझ लो, जिसकी क्लास कल है, समझ रहे हैं। आगे और कोई स्लाइड है, ठीक है। इसी तरीके से गंध से, अभी गंध के बारे में क्या, कि इतने प्रकार के, है ना, रसायन युक्त, है ना, सुगंधित वस्तुएं, आदमी को लगता है इसी से ब्रीद इन ब्रीद आउट और काम बनेगा, काम नहीं बनेगा, बन नहीं रहा है किसी का। आँख बंद करके मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी देर राहत पाइए, और उसके बाद पुनः इसी संसार में आँख खोलिए, वही घर है, वही परिवार है, वही संबंध है, वहीं जीना है। तो जीने की कला सीख लो, आँख बंद करके, खुशबुएं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए
बस इसको यहाँ पर रोकते हैं। तो कल हम जब बात कर रहे थे चैतन्य पक्ष में जो समाधान है ना, वो भी अस्तित्व सहज है, वो भी अस्तित्व सहज है ना। तो जो दृष्टियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अपन इधर आते हैं वापस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा रही थी, काफ़ी बढ़िया स्लाइड्स जो हैं यूज़फुल हो गई। तो शरीर के विषय और संवेदनाओं से जो हमने सुखी करने का प्रयास किया वो हमको प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा भी हमने प्रयास किया, इनको छोड़ करके आप या तो भोग के सुखी हो जाओ और या तो छोड़ करके सुखी हो जाओ। उसके भी स्लाइड्स हैं क्या जनक यहाँ पर? रुको रुको एक सेकेंड, और नीचे जाए, ऊपर जाइए, ऊपर 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 जाए, हाँ, और ऊपर जाइए, और ऊपर। ठीक है, इसमें नहीं, किसी और उसमें स्लाइड्स में डाले होंगे, कोई बात नहीं, अभी वो कहीं और हो गए। नीचे और जाओ, देख लेती हूँ एक बारी, बहुत अच्छे वो चित्र हैं, और जाओ। एक सेकेंड, और जाइए। मुझे लग रहा था अगर वो स्लाइड होती ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड थी, एक्चुअली मैं दिखाना चाह रही थी इसलिए। तो देखो, या तो आपने कहा कि इन मतलब आहार को खूब एक्सेसिव खा लो या वैरायटी खा के हम सुखी हो जाएंगे, एक वो तरीका है ना। तो हम भोग के सुखी हो जाएंगे, हम भोग के सुखी हो जाएंगे, इसको कहा भौतिकवाद। एक रानी की जगह 100 रानियाँ, सुखी हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। वो कोई हुआ नहीं, ठीक है। हर जगह एक शयनागार भी ऐसा हो कि बात ना पूछिए। आज जो हम स्थिति में, इससे बड़े बड़े जो प्रयोग हैं वो राजे महाराजे आज से पहले कर ही चुके हैं। हजारों प्रकार के प्रयोग आदमी कर चुका। कुल मिला के उसका यही था कि 4 विषय 5 संवेदनाओं में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं इसको लगा लिया जाए। खाना खाएं बढ़िया, लेकिन खाना जो है कैसे खाएं, बड़ा अच्छा वातावरण हो, थोड़ा संगीत भी बज रहा हो, और है ना खूब बढ़िया हवा आ रही हो, और मखमली मतलब गद्दे पर बैठ के अपन खाएं। ये सब आदमी ने, जितना आप सोच सकते हैं ना, आदमी ने सब कुछ ट्राई कर लिया। तो दूसरा जो है, दूसरा एक और है, वो कह रहा है कि हम त्याग के सुखी होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सब कुछ भोग के देख लिया, सुख भोगने में तो नहीं है, ये निष्कर्ष आ गया। तो उसने कहा सुनो, अब ऐसा करते हैं, सब कुछ त्यागते हैं। तो त्यागा, आहार को त्याग दिया, उपवास करके देख लिया, निद्रा को त्यागा, जागरण करके देख लिया, भय को त्याग करके जंगल में चला गया, समाधि साधना कुछ अपना जो तप वगैरह करने, वो भी करके देख लिया, प्रजनन को भी त्याग दिया और संन्यास करके देख लिया, इसके वैरायटी को भी त्याग दिया। इसमें जो होने वाले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, अगर आप जानते हो, मैंने तो पहली बार जब देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि ऐसा भी है। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो इस पथ पर चलने वाले लोग थे, तो उनको कितने भी वैरायटी का भोजन दो, सारा भोजन मिक्स कर देते थे साथ में, और उसके बाद खाते हैं ताकि उनको कोई चीज़ का स्वाद ना आए। तो मेरी तो कल्पना से परे था कि ये भी एक प्रयोग मतलब, और ये उनकी विधि है। सो मेरे लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग था, बहुत ही चौंकाने वाला था। तो आदमी ने ट्राई किया कि भोग करके सुखी हो जाएंगे, आदमी ने ट्राई किया त्याग करके सुखी हो जाएंगे, और इस तरीके के 2 प्रयास किए। एक का नाम भौतिकवाद, दूसरे का नाम आदर्शवाद। इस 2 तरीके के प्रयास में ये जो भौतिकवाद है, ये भोग करके सुखी होने की जो बात है, ये थोड़ी थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाता है मामला, क्योंकि संबंध तो सुलझते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या मिला अपने को? क्षणिक सुख। ये तो अपने को यहाँ पर मिला भैया, अच्छा तो लगता है, लेकिन क्षणिक। खा पी के फिर से बैठे तो फिर से कोई परेशानी वाली बात है तो पीछे पड़ी रहती, दिमाग में चलती रहती चिंता, वो तो चलती रहेगी,
है ना। ज़्यादा खा लिए तो क्षणिक सुख भी नहीं मिलता है, बाद में लंबी समस्या आ जाती, सो अलग। तो यहाँ पर सुख मिला, हमको चाहिए क्या था? निरंतर सुख। मानव की चाहत क्या है? निरंतर सुख। ये मानव की चाहत है। तो हमको भौतिकवादी विधि से जब हम जीने गए तो हमको क्षणिक सुख तो मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदर्शवादी विधि से गए तो इन्होंने कहा देखो भैया, अब यहाँ ये जो क्षणिक सुख था ये भी गया, और अब इससे सर्वाधिक जो उपलब्धि हुई वो किसी एक ऐसी अवस्था की उपलब्धि हो गई, सर्वाधिक उपलब्धि जो अरबों में किसी एक को होती है। मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, आप इसका इतिहास उठा के देख लीजिए। एक ऐसी स्थिति आई जिसको कह रहे हैं समाधि, जहाँ पर हम हो गए सुख और दुख से परे। यह है सुख दुख से परे। पर हमको जाना किधर था भैया? अपने को तो गोवा जाना था ना, अपने को जाना था निरंतर सुख अपने को जाना था कहीं, पहुंच गए कहीं, है ना। तो हमको चाहिए था निरंतर सुख, निरंतर समाधान, निश्चित आचरण, समझ पूर्वक नियंत्रित होना, ये चाहिए था ना। जिज्ञासा तो इसके लिए थी, और हम कहाँ खड़े हो गए आके? यहाँ, सुख दुख से परे। इसमें अच्छी बात क्या हुई कि यहाँ पर दुख से परे हो गए, दुख से परे हो गए। ये जो इतनी पीड़ा सताती थी ना संबंधों की, और किसने क्या किया तो किसने क्या नहीं किया, इस सब से क्या हो गई? मुक्ति, दुख से मुक्ति। तो दुख से मुक्ति हुई, लेकिन इसमें क्या हो गया गड़बड़? यहाँ पर तो सुख से भी मुक्ति हो गई। चाहिए था निरंतर सुख, और यहाँ पर दुख से मुक्त होने के साथ साथ सुख से भी मुक्ति हो गई। किसी प्रकार का कोई रस अब नहीं रहा। तो समाधि के अनंतर हम जिए या मरे, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं। संसार में जो जैसा चल रहा है, अपने को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये थोड़ा कहना अजीब लगता है, लेकिन पूरी तरीके से अब ये व्यक्ति अनुपयोगी हो गया संसार के लिए, क्योंकि उसमें कोई प्रकार की हलचल हो नहीं रही है। ये बहुत मार्मिक सत्य है। इसको यदि गहराई से पकड़ा तो उतरेगा। इसमें यदि कोई हठवादिता आ गई तो ये उतरेगा नहीं। तो सुख और दुख से परे मतलब हम सुख दुख से मुक्त हो गए, संसार से हमको लेना देना कुछ नहीं रहा। पर हमको तो चाहिए था निरंतर सुख, तो यहाँ से भी निरंतर सुख मिला नहीं। तो ना भोग से मिला और ना त्याग से मिला। तो हमारे पास एक रास्ता है भौतिकवाद का, इसमें क्षणिक सुख एक मिल गया, फिर ऐसा थोड़ा और क्षणिक सुख, फिर थोड़ा और क्षणिक सुख, ऐसे जोड़ते जोड़ते हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। सवेरे उठे, अभी मेरे को क्या अच्छा लगेगा खाने में, वैसा हमने अपना बढ़िया खाना पीना बनाया। फिर सोचा थोड़ी देर कुछ मूवी देख के सुख मिलेगा तो वो देख लिया। फिर लगा कि थोड़ी देर अपनी सहेली से बतिया के सुख मिलेगा तो वो कर लिया। फिर लगा कि अच्छा सा और क्या आज है ना, मटर पनीर और चावल बने, वो खा के सुख मिल जाए, वो कर लिया। ऐसे जोड़ जोड़ के ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे करके हम लोगों ने अपने क्षणिक सुख को जोड़ के ऐसा टाट पैबंद काम किया है, और ऐसे सुख को हमने पाया है। इसको हम बोलते हैं हमारी आज की दिनचर्या। ये है हमारी दिनचर्या, सिग्मा ऑफ क्षणिक सुख। चाहिए ये मानव में, इसको हम बोल रहे हैं तृप्ति, इसको बोल रहे हैं मुक्ति। तो आज आपके सामने जो हम बात करने जा रहे हैं, इसको हमने कहा विकल्प, कि भैया तुमने ये करके देख लिया, तुमने ये करके देख लिया, भोग से हम सुखी होंगे, त्याग से हम सुखी होंगे। यहाँ पर कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन शास्त्रित्ववाद कह रहा है मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, समझ से सुखी होगा, समझ से सुखी होगा। हमें कहीं जाना था, है ना, और हमारे पास ये 3 रास्ते हैं, ये हमारे पास 3 रास्ते हैं।
ये जो रास्ता है इसको हम कह रहे हैं तृप्ति का रास्ता भैया, जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने का रास्ता है, इसको कहा सह अस्तित्ववाद। एक और रास्ता है भौतिकवाद, एक और रास्ता है आदर्शवाद। यहाँ से जो उपलब्धि है, यहाँ से किस गांव पहुँचोगे वो बता रहे हैं। यहाँ से क्षणिक सुख के गांव मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा सुख दुख से परे का गांव, सुख दुख से परे। ये इस गांव का नाम है जहाँ पहुँचोगे, ये ट्रेन कहाँ जा रही है। और ये है निरंतर सुख का गांव, इसका भी एक गांव का नाम है, ये है निरंतर सुख, है ना। तो इसको कहा यह रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। इसको बाबा जी ने दूसरी भाषा में कहा है यह विकल्प है। विकल्प ट्रेन चुनते हैं ना आप विकल्प, यू स्टिल हैव अ चांस, यू स्टिल हैव द चांस। जब तक धरती समाप्त नहीं हो गई है और आदमी इस धरती पर बना हुआ है, तृप्ति पाने का मार्ग आपके पास है। सहअस्तित्ववाद, सहअस्तित्ववाद कह रहा है समझ से सुखी होगे, इसलिए क्या करना है, अध्ययन। ठीक है, तो ये कुल समीक्षा आज तक के मानव जाति में होने वाले प्रयासों की। आप में से जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, 30 सेकंड में आपको देती हूँ, लिख लीजिए। मुक्ति भोग ना मुक्ति का कार्यक्रम है, सहअस्तित्ववाद तृप्ति का कार्यक्रम है। अद्भुत है ये चीज़। अगर तृप्ति पाई ना होती तो मैं आपके सामने खड़ी ना होती। ना भोग ना त्याग, समझ, समझ का मार्ग। परिवार जैसा हो जाता है, तो कई बार उनके नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। वैसे ही आपसे नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर आपको इस मार्ग पर साथ चलना है तो अध्ययन का हम लोग कुछ कार्यक्रम निकालेंगे यहाँ पर, और आप सभी जुड़िए। 15 पुस्तकें साथ में मिल बैठ के पढ़ेंगे, जिज्ञासा के साथ प्रस्तुत होंगे, समाधान के साथ जाएंगे। तृप्ति पूर्वक इसी शरीर यात्रा में एक तो तृप्ति मिल जाए और उसके बाद तृप्ति के अनंतर उसकी निरंतरता। ऐसा जीना कैसा जीना हो भाई, इसी को तो कह रहे हैं जीना उत्सव पूर्वक। पाए और बांटे, अपन कल्प वृक्ष बन गए, ऐसा घड़ा हो गए कि उसमें से निरंतर प्रवाह हो ही रहा है। ये जगह है, ठीक है। અને બીજું એક કે આ વિકલ્પ તરીકે છે તો એની પણ તમારી સહમતિ છે કે નહીં? તો તમારા કોઈ પ્રશ્ન હમણાં સુધી કે આપણે જે હમણાં સુધી કીધું એ બધો સાથે છો કે નહીં? સાથે છો એટલે એમાં સ્વીકૃતિ છે કે નહીં, એમ શું છે બધાનું? हम साथ हैं अब तक? और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, है ना, उसका भी उत्तर देंगे। धन्यवाद। यही है पूरकता, है ना, हमको पता चल रहा है कि थोड़ा पानी पिला दिया जाए। बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, ये बात सटीक है। बात अंदर अपने GPS लगा हुआ है। यदि किसी बिना हट बिना आवेश इस बात को सुनेंगे, बात बिल्कुल पचती है। आदमी के पचने लायक बात है ये। तो आज के जगत की यथास्थिति ये, तो न भोग न त्याग, समझ से सुखी होने का कार्यक्रम। तो समझ को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें स्पष्ट भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। मुझे ये स्प्रे पूरकता प्रति क्षण हमारे साथ है। 70% पानी है समुद्र और 70% पानी है हम। पानी हमारी आँख का आंसू हमारे भाव को व्यक्त कर देता है। पानी ही तो है, तुरंत व्यक्त कर देता है। हमारे भाव को व्यक्त करने के लिए पानी की वो पूरकता है।
मेरे बोलने के लिए गले में अगर सूखापन आ जाए मैं बोल नहीं सकती हूँ, यह पानी की पूरकता है। शरीर में भी एक गिलास पानी गया, स्फूर्ति आ गई, ये पानी की पूरकता है। आपके समझने के लिए इस बोर्ड में मिटाने के लिए ज़रूरत पड़ी, पानी की पूरकता है, ये पानी है। पानी जिस दिन समझ में आएगा ना, उस दिन जिंदगी समझ में आएगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अद्भुत वस्तु है। मैं थोड़ा चर्चा कर देती हूँ। कभी कभी मैं इतना अभिभूत हो जाती हूँ ना बोलते बोलते, मेरा मन ही नहीं करता, मुझे लगता है मैं इसके बारे में थोड़ा बोलूँ। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, पहला हाइड्रोजन। ये अपने में भ्रूण समाये हुए है पानी का। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके सबसे पहली वस्तु अस्तित्व में जो बनी है वो पानी है। इस अस्तित्व के प्रकटन क्रम में सर्वाधिक प्रथम जो परमाणु है, वो परमाणु अपने आप में एक भ्रूण स्वरूप है। भ्रूण स्वरूप मतलब इस पानी में हाइड्रोजन छिपा हुआ है ना। इस अस्तित्व में प्रकटन क्रम में ही मानव का आना सुनिश्चित है, क्योंकि ना पानी होता ना हम होते। ये पानी है। तो ये जो पानी है, इसकी पूरकता को देखिए, इसको अप्रिशिएट करिए। यदि पानी को हम समझे होते ना ऐसा, तो पानी की ये हालत होती जैसी आज हालत है। जल प्रदूषण होता? जल प्रदूषण है, मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया, प्रदूषण है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम पानी को समझे नहीं हो, पानी समझ में नहीं आया। पानी वो जो मिट्टी की प्यास बुझाए अपने आचरण को त्याग करके, इसकी व्यक्तिवादिता को विलय करके, इसकी आइडेंटिटी को विलय करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके अपनी आइडेंटिटी को विलय करके पानी नाम का एक आचरण, पानी का आचरण को प्रस्तुत करते हैं। पानी नाम की वस्तु और इसका आचरण बुझाने वाला के रूप में मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जानवर और आदमी तक की प्यास बुझाने का काम। ये वस्तु हमारी प्यास बुझाए और धरती की प्रत्येक अवस्था लगी हुई है कि पानी कैसे शुद्धतम स्वरूप में आ जाए। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। मुझे पता चला इस अध्ययन काल में कि बहुत सारे पेड़ों की जो जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें ऐसी होती हैं कि जो देखिए जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर अपने घोंसले को बनाते हैं, उसके आसपास जो भी वो फल वगैरह खाते हैं उसके बीज वहीं गिरा देते हैं। तो नदी के किनारे हमेशा पेड़ रहते हैं। तो नदी के किनारे जो पेड़ रहते हैं, उन पेड़ों की जड़ें ऐसे नीचे जाती हैं कि जो भारी तत्व या ऐसे तत्व होते हैं जो मानव के लिए अनुपयोगी थे, उसका वो शोधन करते रहते हैं। मतलब पेड़ों की जड़ें पानी को शुद्ध करने का काम करती हैं। अद्भुत बात है ये। और बाकी तो मैंने बताया था, जब नदियाँ बहती हैं तो भारी तत्वों को बहा कर ले जाती हैं, तो उनका तेज़ी से बहना तो साल में एक बार होता है, लेकिन साल भर ये पेड़ की जड़ें पानी को शुद्ध बनाने का काम करती हैं। हमको कुछ नहीं पता, बावले जैसे हम नदियों के किनारे पेड़ साफ, वहाँ पर उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। साफ सोच रहे हैं इसको स्वच्छ बना रहे हैं, ये स्वच्छ हो रहा है। स्वच्छता अस्तित्व सहज है। स्वच्छता अस्तित्व सहज है। कल्पना करके देखिए, जंगल ज़्यादा स्वच्छ रहता है या एक ऐसा बीच जहाँ पर कोई ना हो, केवल जीव जानवर हो, और एक जहाँ आदमी जाता है वो बीच को आप देख लीजिए। स्वच्छता जो है वो अस्तित्व सहज है भाई। तो चलिए वापस विषय पर आते हैं। पानी अद्भुत वस्तु है। पानी का अध्ययन होते होते ही कई बार अस्तित्व का अध्ययन हो जाता है पूरा। सोचते जाइए, इसको विचार करिए। हाँ, स्वच्छता अस्तित्व सहज है।
गंदगी भ्रम का स्वरूप है, हस्तक्षेप बंद करना मात्र है, हमको सुधारना भी नहीं है। हीलिंग कैपेसिटीज़ जो है ना वो इनबिल्ट हैं हर एक समाधान स्वरूप अवस्था की प्रत्येक वास्तविकता में। बॉडी में भी हीलिंग कैपेसिटी है। और देखा जाए तो सब लोग है ना एक्चुअली हमारे लिए पूरक हैं। हाँ, ये हम है ना जागृति को पा लें। यस, ये व्यवस्था- बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अप्रिशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये नन्ही नन्ही सी चींटियाँ, ये बटरफ्लाईज है ना, ये एक एक जो वास्तविकता है ना ऐसी सुंदर सजी है कि आपका जो चैतन्य पक्ष है, या आप मतलब चैतन्य पक्ष, या आप शरीर तो है नहीं, आप जागृति को प्रमाणित कर सके। प्रमाणित, ना कि सिर्फ जागृत हो जाएं, जागृति को प्रमाणित कर दें, इसके लिए सजी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम जीव चेतना में देख रहे हैं तो जीव चेतना में जो स्वभाव है ना, स्वभाव है, दो प्रकार के स्वभाव देखते हैं। मैं इसका अध्ययन नहीं करवाऊंगी, तो समस्या का अध्ययन है, लेकिन थोड़ा इशारा ज़रूर करूंगी आपको, कि ताकि आपको पता चले हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैंने भौतिकवाद आदर्शवाद को रखा तो पता चले कि अच्छा ये मार्ग वही मार्ग नहीं है, यहाँ हम सुख दुख से परे नहीं होने वाले, यहाँ पर हम निरंतर सुख की यात्रा कर रहे हैं। हमारा गांव अलग है, अपने गांव जा रहे हैं ना, तो यहाँ दीनता, हीनता और क्रूरता, ये थोड़ा इसलिए रख रही हूँ ताकि हमें पता चले कि हम इस यथास्थिति में हैं भाई। जब मानव जीव चेतना में जीता है, वैसी स्थिति में उसके अंदर दो प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और वो दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी वो एकदम से दीनता हीनता में चला जाता है और कभी एकदम से क्रूरता में चला जाता है ना। यहाँ पर जीव चेतना में जो व्यवस्थाएं हैं, है ना, वो व्यवस्था इस दीनता हीनता और क्रूरता को बनाए रखने के लिए हैं। बॉस के सामने भीगी बिल्ली और घर में बब्बर शेर, ऐसा कुछ होता है। बच्चे स्कूल में प्रिंसिपल के सामने भीगी बिल्ली और घर में एकदम आतंकवादी ऐसा कुछ है ना। इसका थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि उसी संसार में तो रह रहे हैं हम। तो जिसको हम पाते हैं, जैसे ही हमने पाया कि किसी में हमारे प्रति आश्रय प्रवृत्ति है, तो उसके सामने हम क्रूर हो जाते हैं। जैसे कि कोई पति को यदि पता है कि पत्नी हमारे ऊपर निर्भर है, उसने हमारे ऊपर आश्रय लिया है, हम उसके सामने बड़ी आसानी से क्रूर हो सकते हैं। आवाज़ आराम से ऊंची निकल सकती है। हमको पता है हमारी माता भी बूढ़ी हो गई, हमारे ऊपर आश्रित है, आवाज़ ऊंची निकलती है। अगर बच्चे को पता चल गया कि हमारे पिताजी अपने सुख के लिए हमारे ऊपर आश्रित हैं, तो पिताजी के ऊपर बच्चा निकल पड़ता है। ये है जीव चेतना का प्रमाण। इसमें स्वभाव दीनता हीनता क्रूरता बना ही रहता है। जैसे ही हम अपने सामने वाले को देखते हैं वो हमारे ऊपर अपने सुख के लिए आश्रित है, हम उसके साथ क्रूर हो जाते हैं। और जैसे ही हमको लगता है कि हमारा सुख इससे सुनिश्चित होगा, मतलब वहाँ से पैसे मिलेंगे तो आहार निद्रा भय प्रजनन की जो भी वस्तुएं हम उसको जोड़ लेंगे। हम उसके सामने तुरंत, जी साहब हम ऐसे हैं इच्छाधारी पशु के जैसे, एकदम हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या देखते हैं, स्वभाव दीनता हीनता, और यहाँ पर जो एक प्रवृत्ति रहती है वो आश्रय प्रवृत्ति रहती है। हमारा दुख कोई दूर कर दे, हमारा जो भी पीड़ा या हमारा सुख कहीं और से हमको मिलेगा, उसके लिए कोई व्यक्ति के ऊपर हम निर्भर हैं। किसी व्यक्ति पर भी निर्भर हो सकते हैं, किसी विचार पर भी निर्भर हो सकते हैं, किसी काल्पनिक सत्य पर भी निर्भर हो सकते हैं। जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, इसका जो पराकाष्ठा है वो ऐसा कि भैया ये जो पूरा संसार है ये तो माया है, और हमारा जो सुनने वाला तो कोई और है,
वही हमको सुखी करेगा। ये इसकी पराकाष्ठा है, ये यहाँ तक जाती है कल्पना। आश्रय प्रवृत्ति, आश्रय प्रवृत्ति मानवीय नहीं है। मानव अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ है, उसके हाथ में उसको समाधान चाहिए और वो अपनी कर्म स्वतंत्रता के माध्यम से उसको प्रमाणित करना चाहता है। उसको समाधान चाहिए, समाधान देखना चाहता है, जिज्ञासा है प्रमाणित करने के लिए उसके पास। वो अपने शरीर को पुष्ट स्वस्थ देखना चाहता है, यह है उसका डिज़ाइन है। ये बाबा जी बता रहे हैं कि बेटा ये तो जो कुछ नासमझी कर ली, इधर चले गए किसी कारण से, किसी ने कुछ सिखा दिया आपको, कैसे तुमने कुछ समझ लिया, ठीक है। कह रहे हैं असल में तुम्हारा स्वभाव है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा। ये तुम्हारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन है। ये जो जिज्ञासा बालक के अंदर रखी हुई है, ये अस्तित्व में आ गया। अस्तित्व सहज विधि से हमारा डिज़ाइन क्या है, ये सब जो ऊपर है ना, ये आवरण है बस केवल। जैसे सांप अपनी केचुली को उतार देता है ना, अपन उतार के रख देंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये विचार अपना था ही नहीं, अपन तो जिज्ञासु थे। तो ये स्वभाव गति का जो बालक है, इसमें न्याय की याचना है। और धीरता का मतलब ये बाबा जी रीडिफाइन कर रहे हैं। धीरता का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय करे और तुम सहते चले जाओ, अपने आप को दबाना धीरता नहीं है। उसी को मार काट डालना वीरता भी नहीं है। ये दूसरी बात, एक तो दब रहे हैं, फिर उसके बाद एकदम से वो सब तो इधर है, दीनता, हीनता और क्रूरता है कि पहले दब गए, वो दीनता, उसको मिटा दिया, वो क्रूरता। ये सब जीव चेतना का काम है। इधर बाबा जी कह रहे हैं धीरता बराबर न्यायपूर्वक जीने के लिए मन लगाना। बहुत जोरदार है, ये अद्भुत बात है, समझ में आ जाए ना आपको। न्यायपूर्वक मतलब अखंड समाज मानसिकता। अखंड समाज का मतलब क्या? व्यक्ति, परिवार और इस तरीके से अखंड समाज। बाय द वे, ये जो व्यक्ति, परिवार, अखंड समाज 3 शब्द है ना, इसको समझने के लिए एक पूरी पुस्तक है। ये होगा कैसे? ये केवल कोरी कल्पना नहीं है, अस्तित्व का अध्ययन है। एक एक बात ऐसी आपको, जैसे इसको कहते हैं ना, उतरती चली जाएगी। आप इसमें ना, जैसे रसगुल्ला होता है ना, जब उसको तल के तैयार करो, उसके बाद चाशनी में डालो, एकदम डूबा भीगा गिरा, ऐसा संपृक्त हो जाएंगे आप। आह्लाद मतलब जिसको कहते हैं ना, आनंद से भाव विभोर होने की स्थिति है ये, इतना समझना। तो जो बालक है, अपनी माँ को पहचाना, पिता को पहचाना, पड़ोसी को पहचाना, इस तरीके से वो अखंड समाज को पहचानना चाहता है। यदि इस जिज्ञासा के साथ समाधान आ गया तो वो पहचान लेता है। तो न्यायपूर्वक जीने के लिए मतलब अखंड समाज मानसिकता के साथ जीने के लिए अपने मन को लगाना। मन को लगाना मतलब क्या? ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, बिना मिलावट किए सुनना। धीरता का नया मतलब आपके जहन में बिठा लेना, यही है मन लगा के सुनना। अभी हम दीनता-हीनता को धीरता मान लेते हैं। बहुत धीर है भाई, बड़ा धैर्य है। धैर्य मतलब क्या? बुलशिट को बेयर करना, उसको बोलते हैं धीरता। आज की स्थिति में, यथास्थिति में एक्चुअली वो दीनता-हीनता है। आपके पास समाधान प्रस्तुत करने की योग्यता नहीं है। एक बाबा जी का सूत्र बताऊं आपको, मज़ा आ जाएगा सुन के। कहाँ लिखूं लेकिन
नीचे लिखूं, यहाँ लिखती हूँ। प्रतिकारात्मक साहस का ना होना ही, प्रतिकारात्मक साहस का ना होना ही दास्यता स्वीकार है। और प्रतिकारात्मक साहस का मतलब क्रूरता नहीं है। प्रतिकारात्मक साहस का मतलब है समाधान संपन्न होना। तुम्हें ये पता होना कि इस स्थिति में ये वस्तु सही कैसे होगी, गलत क्या है और सही क्या है। जिस व्यक्ति में ये प्रतिकारात्मक साहस या समाधान संपन्नता हो गई, दास्यता स्वीकार उसमें नहीं होगा। वो रीढ़ की हड्डी के साथ खड़ा होगा, वो आदमी आदमी होगा, वो मानव मानव होगा। पुनः समाधान संपन्न होने के लिए अध्ययन, 4 अवस्थाओं का अध्ययन है, हो ही रहा है, शुरू तो हो ही चुका है। तो बढ़िया बात है ना ये बाबा जी की, तालियां बजाइए भाई। एक परम मानव हमारे बीच में, ज्ञान जिसको अभी तक अव्यक्त अवचनीय बोला, इसको उन्होंने व्यक्त कर दिया। निरंतर सुख की तलाश में जो निराश हो गए थे, सुख दुख से परे की स्थिति में पहुंच गए थे, वहाँ से बाहर निकाल के उन्होंने कहा निरंतर सुख का मार्ग खोज लिया गया है, ये रहा। और ये रहा टिकट, बैठो इस गाड़ी में। और टिकट में ना, टिकट के कोई पैसे भी नहीं हैं। सारे भाई बहन इतना खुश हैं जहाँ पहुँच गए हैं, उससे निःशुल्क सारा कार्यक्रम। ठीक है, जानते हैं क्यों? क्योंकि मानव जाति एक, आप हमारे भाई बहन हैं। इसलिए परिवार में पैसे का व्यवहार थोड़ी चलता है, इसलिए। तो धीरता का मतलब बाबा जी बता रहे हैं तुम्हारा स्वभाव है, अखंड समाज मानसिकता से तुम लैस होना चाहते हो। तुम तो पूछ ही रहे थे कि कौन कौन है भाई, इसका बताओ, ये कौन वो कौन। अखंड समाज मानसिकता से जीने के लिए मन को लगाना बालक में स्वाभाविक है। और हम जो ऐसे बालक हैं जिनमें अभी तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से चलेंगे। वीरता क्या है? न्याय पूर्वक जीने के लिए तन और मन को लगा देना, या न्याय, इसको थोड़ा और लिखती हूँ, अन्य को, मुझे अन्य शब्द अच्छा ही नहीं लगता है, अन्य को न्याय उपलब्ध कराने के लिए तन और मन को लगाना। ये जो धीर व्यक्ति है ना, जिसने मन लगा के सुन लिया, इस धीर व्यक्ति को समाधान की झलक आ ही जाती है, आ जाती है भाई। सुनेगा तो समझेगा, क्योंकि सुनने के बाद समझने का डिज़ाइन है। समझने के बाद दूसरे को न्याय उपलब्ध हो जाए, न्याय मतलब अखंड समाज मानसिकता उपलब्ध हो जाए। मैं भी समझूं, तुम भी समझो, साथ साथ चलना है, साथ साथ गांव तक पहुंचना है, साथ साथ घर जाना है, साथ साथ धरती को स्वर्ग बनाना है। तो उसके लिए अपने तन को भी अर्पित कर देता है। तन को अर्पित करने का मतलब इस व्यक्ति में ना आपको थोड़ी सेवा दिखाई पड़ेगी, तुमको भी समझ में आ जाए, इसके लिए वो सेवा करने को तत्पर दिखाई पड़ता है। आपके लिए साधन जुटाता है कि भाई तुमको भी कैसे करके तुमको भी बात पहुंच जाए। तन को लगाना शुरू करता है, सेवा भाव अपने आप जागृत होता है आदमी में, करना नहीं है, होता है। अस्तित्व का डिज़ाइन है, होता है, चाहिए वाला डिज़ाइन नहीं है। चाहिए तो कामना है ना, सच बोलना चाहिए, कामना है ना। ऐसे न जाने कितनी कामनाएं, कामनाओं की लिस्ट है। ये कार्यक्रम की बात है। उदारता अन्य को, या मैं तो यहाँ लिखना चाहूँगी सभी को, है ना। तो कुल मिला के, क्योंकि मानसिकता के साथ सभी को न्याय उपलब्ध हो जाए, मतलब अखंड समाज मानसिकता उपलब्ध हो जाए। मतलब क्या उपलब्ध हो जाए? समाधान उपलब्ध हो जाए। इसके लिए
इसके आगे की स्थिति जानते हैं क्या होती है? वो कहता है भैया तन मन और मेरा धन। इसको बाबा जी ने एक और शब्द दिया है अपने अर्थ को, तन मन धन। मन जो है अपने चैतन्य पक्ष की ताकत, तन अपने शरीर रूपी साधन को कहा, और धन जो उपार्जन हुआ है। आप हमारे घर में आइए, खाना खाइए, खाना खिला के पिला के प्यार से समझाएंगे। ये है अपने तन मन धन का नियोजन, ये है उदारता। किसी बेवकूफ़ की भूल को क्षमा कर देना ये उदारता नहीं है। बेवकूफ़ को खिला के पिला के प्यार से समझदार बनाना ये उदारता है है ना। वो बेवकूफ़ इसलिए है क्योंकि उसके पास शिक्षा का या ज्ञान का अभाव है। ये बात समझ में आना, ये अखंड समाज मानसिकता है। कितना बज गया? अरे वाह, 1 बज गया। ये वाले सत्र में तो पता ही नहीं चला। आप लोग इतना ध्यान से एकदम सुन रहे हैं ना। कैसा है ये? अद्भुत है। इसको बाबा जी ने एक शब्द दिया है, धीरता वीरता उदारता, जिसके अंदर दिखने लगे तो समझ लेना कि वो व्यक्ति मानव चेतना में जी रहा है। तुम पहचान जाओगे, क्योंकि इसमें गुणात्मक परिवर्तन है ना, रूपात्मक परिवर्तन तो है नहीं। उसके पीछे हैलो तो है नहीं, वाइट लाइट तो निकल नहीं रही उसके पीछे खोपड़ी के हिस्से से, अष्टभुजी भी नहीं हो जा रहे हैं हम, ये तो सब हो नहीं रहा है। गुणात्मक परिवर्तन है, चेतना में गुणात्मक परिवर्तन की ये पहचान है। गुण मतलब परस्परता में प्रभाव, परस्परता में वो कैसा दिखाई पड़ रहा है अन्य को, मतलब परस्परता में हम सब विचार रूप में समाधानित हो जाएं, उसके लिए तन मन को लगाया और धन को भी लगा दिया। यह है मानव चेतना में परिमार्जन। और ऐसा मानव देख करके अमानव भी तृप्त होता है। ये कितना अद्भुत है। अमानव जो है ना, बाबा जी ने इसको ऐसा नाम दिया है, जीव चेतना को इन्होंने कहा यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अमानव। और कभी कभी बाबा जी ऐसा शब्द भी यूज़ कर लेते हैं, पशु मानव, और इसको कह देते हैं राक्षस मानव है ना, है ना। इसी को कह देते हैं भ्रमित मानव। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बाबा जी ने वांग्मय में, वांग्मय मतलब जो साहित्य पुस्तकों में कहीं कहीं किया है। मुझे ये ठीक लगता है अमानव। तो अमानव को भी वो जब मानव को देखता है उसको लगता है ये बढ़िया आदमी है, इससे मेरी दोस्ती जमेगी। और जो मानव है उसको तो दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर इसके आगे दया कृपा करुणा है ना। इसको ऐसे लिखते हैं बाबा जी, पात्रता हो और वस्तु ना हो। इसको थोड़ा और ऐसे लिखती हूँ, है ना, या चलो ठीक है। पात्रता हो, पात्रता मतलब ग्रहण क्षमता, पात्र मतलब बर्तन, पात्र मतलब बर्तन। यदि बर्तन खाली है तो वस्तु जाएगी, और यदि बर्तन खाली नहीं है तो वस्तु जाएगी नहीं। तो मानव की पात्रता क्या है? मानव की जिज्ञासा। यदि जिज्ञासा हो, वस्तु ना हो, तो वस्तु उपलब्ध करावे। यह है दया। वस्तु क्या है? मानव को चाहिए क्या? क्या चीज़ है जो मानव के पास नहीं है? शरीर तो जो है वो समाधान स्वरूप है। इस समाधान के लिए अन्य समाधान के रूप में तीनों अवस्थाएं सजी हुई हैं। क्या नहीं उपलब्ध है? समाधान नहीं उपलब्ध है। तो जिज्ञासा हो, समाधान ना हो तो उसको उपलब्ध करावे, मतलब जुड़ जाए। यहाँ से परिमार्जन शुरू होता है अमानव में, क्योंकि अमानव ने मानव को देखा, आइडिया तो लग जाता है।
हम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बना के भी रखना चाहते हैं। लोग हमको बड़े बढ़िया लगते हैं, हम लोग कहते भी हैं बहुत बढ़िया व्यक्ति। तो जिज्ञासा हो, समाधान ना हो, तो क्या उपलब्ध करा दे उसको? समाधान। ठीक है। और कृपा का मतलब है वस्तु हो, पात्रता ना हो। अच्छा, तो पात्रता उपलब्ध कराए। क्या मतलब इस बात का? वस्तु मतलब देखो, अस्तित्व में समाधान तो है ही। अस्तित्व में समस्त वस्तुएं समाधान स्वरूप हैं, लेकिन कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास जिज्ञासा ही ना हो। मतलब जिज्ञासा ना हो मतलब क्या? उसका उस तरफ ध्यान ना जा रहा हो, उसका उस तरफ ध्यान ना जा रहा हो, तो ध्यानाकर्षण करा दे और उसका ध्यान उस तरफ ले जाए। देखो, वस्तुएं तो अस्तित्व में थी ही, पानी भी था, आंसू भी था, और ये भी था तो वो भी था, सब कुछ तो था ना। मेरे बोलने मात्र से आपका ध्यानाकर्षण होता चला जा रहा है, और मेरा ध्यानाकर्षण हुआ मेरे गुरु के द्वारा, मेरे अध्ययन के द्वारा, मेरे भाइयों के द्वारा, मेरी बहनों के द्वारा। ये इतना छोटा सा कार्यक्रम। तो समाधान तो है ही अस्तित्व में, जिज्ञासा न हो तो क्या करा दे? ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण करा दे। ऐसा सुंदर व्यक्ति है ये, ऐसा सुंदर मानव है ये कि ध्यानाकर्षण को करा पाने की इसमें योग्यता है, इसमें क्षमता है। बात को ऐसी तरह से रख दे कि आपका ध्यानाकर्षण हो जाए, आपको गति मिल जाए। तो बाबा जी ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक नाम दिया है, देव मानव। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी नाम, क्योंकि इसमें भी है ना, और तो कुछ होने नहीं वाला है अपने पास कि अपन यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। रूपात्मक कोई परिवर्तन नहीं, गुणात्मक परिवर्तन, चेतना में विकास हो रहा है। तो ऐसी चेतना जो ये करने में सक्षम है, उसको कह रहे हैं देव मानव। और अंतिम, वस्तु ना हो और पात्रता भी ना हो, दोनों उपलब्ध करा दे। ऐसे को बोला है दिव्य मानव। जिज्ञासा भी नहीं है, हमको सही से प्रश्न क्या पूछना है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हम अपनी हठवादिता के कारण कुंठित हैं, आसक्त हैं, क्षुब्ध हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं। ऐसे व्यक्ति को ध्यानाकर्षण करा करके उसमें जिज्ञासा उत्पन्न कर देना और अस्तित्व के दर्शन करा देना, उसको कह रहे हैं, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे मानव को उन्होंने नाम दिया है दिव्य मानव। समाधान होना, समाधान उपलब्ध कराना, ये संस्कारानुषंगीयता का फलन। और इसी को कह रहे हैं, ऐसा जब होगा तो यही धरती क्या हो जाएगी? यहाँ पर ही धरती स्वर्ग और मानव देवता। गुणात्मक परिवर्तन है, ये बात याद रहे। दो पीछे से पंख नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है। हमने जो देवों का चित्रण किया है ना, उसमें कहीं पंख निकल रहे हैं और तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, वो रूप के आधार पर किया, चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, बढ़िया रहा, बात पहुंची आप तक। तो ठीक है, सत्र को यहीं पर रोकते हैं और आप सभी से भेंट होगी 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे मतलब। ठीक है, नमस्कार।